Welcome to the class, dear students. Today we are going to deal with the very important topic of Unit 3, which will be of GATT and WTO. So, before beginning to understand what are the major functions of World Trade Organization, we will begin with studying GATT or General Agreement on Tariff and Trade, which was basically the precursor of WTO. As we have told in previous lecture that mainly the world major institutions which have promoted international business have come up basically after World War II. So be it IMF, be it World Bank, be it ADB, be it AIIB or NDB, all these have come up due to different reasons post World War II. And Bretton Woods Conference was one of the major conferences which was held to ensure that after World War II, after the ravages of World War II, the world sees or world comes to the path of economic prosperity. So IMF was constituted, then IBRD was constituted, which eventually became World Bank. In same series, to promote international trade and to ensure that there is some sort of equal playing field, or there may not be major hurdles while one country is conducting its export or import or international business with another country, General Agreement on Tariffs and Trade also came up. So let's begin to understand, because even today, WTO, which is basically which came in 1995 and which was after which came after GATT, or GATT eventually transformed itself into WTO. So even today, WTO is very major institution which ensures that world trade takes place in smooth manner. Basically, what we can say is that there is no substitute for WTO right now. Say, for example, for IMF, there is obviously substitute of AIIB or NDB or ADB. Similarly, if we see for World Bank, there are another multilateral development institutions which have come as a parallel substitute. But for WTO, there is practically no parallel or substitute. So let's begin with the topic of GATT, or General Agreement on Tariffs and Trade. So General Agreement on Tariff and Trade, as I told you, basically it had come after World War II, and it was a legal agreement which minimized barriers to international trade by eliminating or reducing quotas, tariffs, and subsidies while preserving significant regulations. GATT was intended to boost economic recovery after World War II through reconstructing and liberalizing global trade. Though the talks were actually going on even in Bretton Woods Conference, but GATT finally came into effect in 1948. And the basic purpose was to ease out international trade barriers and let the trade become easier. So after its formation, GATT
had different rounds of talks, and in different rounds of talks, the basic agenda was how to improve the international trade, how to reduce barriers, how to have free flow of international trade. So from 1947 up till 1986, there were around 8 rounds of talks, and in each talk there was some major achievement and outcome. In 1995, GATT was absorbed into World Trade Organization, which further extended it. There were many positives of GATT. In right from its year of formation up till it was absorbed by WTO in 1995, GATT had held lots of rounds of talks with different member nations, and basically it helped to reduce tariffs, and these talks led to the increase in world trade by 8% from 1950s to 1960s. Trade grew actually from 302 billion US dollars in 1970 to 3.8 trillion in 1993. You can see tremendous increase. By increasing trade, GATT promoted world peace. In the 100 years before GATT, the number of wars were 10 times greater than the 50 years after GATT. So when international trade takes place and countries prosper and progress and become economically strong, they hesitate to take up war on smaller issues and try to sort through talks only, sort the matter through talks only. So हमको यहाँ पे जो है बेसिकली ये पैरामीटर एक स्टैटिस्टिक्स दिख रही है कि गैट फॉर्मेशन के 100 साल पहले तक अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं तो वॉर जो है 10 टाइम्स ज़्यादा होते थे कंपेयर टू अगर हम 50 इयर्स का हिस्ट्री देखें गैट के फॉर्मेशन के बाद का, तो ये एक बहुत मेजर अचीवमेंट था. बेसिकली जो है वॉर को रिड्यूस करने में बहुत जो है ये गैट एग्रीमेंट सहायक होता है. By showing how free trade works, GATT inspired other trade agreements. It set the stage for European Union. Despite the European Union problems, it has prevented wars between members. GATT also improved communication. It provided incentives for countries to learn English, the language of the world's largest consumer market. So GATT का formation होता है जब लोग धीरे धीरे उसके फायदे समझते हैं, तो लोग जो है इस बात को भी ध्यान देते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेड को इम्प्रूव किया जाए. तो जाहिर सी बात है ट्रेड जब इम्प्रूव करने के लिए जो है एक बेसिकली मेथड होता है कि एक दूसरे की बातों को समझें. एक दूसरे की बातें समझने के लिए जो है एक कॉमन लैंग्वेज का होना ज़रूरी होता है. तो इसी चक्कर में जो है एक बेसिकली जो है इंग्लिश जो है ऐसा कॉमन लैंग्वेज ये उभर के आती है और वर्ल्ड लेवल पे जो है इस लैंग्वेज का प्रमोशन होता है और वर्ल्ड ट्रेड जो है इम्प्रूव होता है. बहुत सारे रीजंस थे जो कि गैट में जो है उसके लिए निगेटिव पॉइंट्स की तरह एक्ट करते थे. जैसे मैंने आपको एक चीज़ जो है एम्फसाइज की है कि गैट का फॉर्मेशन जो है यूएस, यूके और सिमिलर अदर रिच कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में ही हुआ था. तो गैट हैज़ ऑफन बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग रिच मैन्स क्लब. एवरीथिंग इन गैट यूज्ड टू वर्क इन द मैनर दैट सूट्स द रिच नेशंस. जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती थी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता था, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जहाँ से भी उनके जो हेडक्वार्टर्स होते थे वहाँ पे जो है जो उनके मेन डायरेक्टर या प्रेसिडेंट होते थे वो सारे के सारे अपॉइंटीज जो भी होते थे वो रिच कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज से ही होते थे, अमेरिका के होते थे. US and UK government subsidized many industries to make them more competitive on global scale. Their exports became cheap, loss for poor nation. तो गैट इस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाता था कि बहुत सारे जो रिच नेशंस होते थे वो उनके पास बहुत पैसे होते थे तो वो अपने जो है इंडस्ट्रीज को सब्सिडाइज करते थे. जब बहुत सब्सिडी मिलती थी यानी कि टैक्सेशन बहुत कम होता था तो उनके प्रोडक्ट जो होते थे बहुत ही हाई वर्ल्ड लेवल पे बहुत ही लेस कॉस्ट के बनते थे और पुअर कंट्रीज जो होती थी वो जो है उन प्रोडक्ट से जो है ईजिली कॉम्पीट नहीं कर पाती थी. तो ये भी एक लॉस फॉर पुअर नेशन होता था. By the 1980s, the nature of the world trade had changed. GATT did not address the trade of services
that allowed them to grow beyond any one country's ability to manage them. तो एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि गैट जो है वो गुड्स को तो गुड्स की प्रॉब्लम्स जो भी होती थी चाहे ट्रेड एंड टैरिफ से रिलेटेड उसको तो एड्रेस करता था, मगर धीरे धीरे हम देखते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री जो है बहुत राइज करती है। तो गुड्स और सर्विसेज में जो है गुड्स के ऊपर तो जो है पूरा फोकस था और गुड्स के बारे में सारी पॉलिसी भी थी, लेकिन अराउंड धीरे धीरे 70 से 80 से 90s की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे सर्विस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट हो रही थी, इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन सर्विसेज को लेके जो है गैट के पास जो है कोई मेजर ठोस जो है रेगुलेशंस या पॉलिसीज नहीं थी। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक था गैट का। गैट फर्दर जो है वो दैट रिड्यूस द नेक्स्ट जो है वो गैट रिड्यूस द नेशन राइट्स ऑफ द नेशंस टू रूल इट्स ओन पीपल। The agreement required them to change domestic laws to gain the trade benefits. For example, India had allowed companies to create generic versions of drugs without paying a license fees. This helped them more people to afford medicine. GATT required India to remove this law that raised the price of drugs to reach to level out of reach of many Indians. तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज जो होती थी, एसेंशियल चीजें जैसे मेडिसिन हो गई, वहाँ पे भी जो है गैट के साथ प्रॉब्लम ये होती थी कि गैट जो है वो फोर्स करता था डेवलपिंग नेशंस के, जैसे इंडिया के केस में, कि वो जेनेरिक वर्जन ऑफ ड्रग्स जो है जल्दी ना बनाए, क्योंकि जेनेरिक वर्जन ऑफ ड्रग जो है अगर हम किसी मेडिसिन का बनाते हैं तो वो जो है उसके लिए हमको पेटेंट का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइसेंस की फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपने लॉज में जो है उसने एक क्लॉज रखा हुआ था कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है ये लॉ इम्प्लीमेंट करेगा और जेनरिक ड्रग का जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकता है अगर किसी ड्रग के लिए, एसेंशियल ड्रग के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गैट जो है एक प्रेशर जो है डेवलप करता था। गैट का मतलब होता है रिच कंट्रीज जो होती थी, जो गैट बेसिकली जो गवर्न करती थी, वो प्रेशराइज करती थी इंडिया को कि अगर आपको ट्रेड बेनिफिट्स लेने हैं गैट समझौते के अंतर्गत, तो फिर आपको जो है इस तरीके के जो अपने यहाँ जो आप अपने लॉज जो आपने रख रखे हैं जिससे कि आप जो है जेनरिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करेंगे विदाउट पेइंग द लाइसेंस फीस, उसको आप हटा दीजिए। तो इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर हम ये चीज़ नहीं करते थे तो हमें जो है बाकी बेनिफिट्स नहीं, दूसरे कंट्रीज बॉयकॉट कर देते थे और हमको जो है गैट के जो है अदर पॉजिटिव जो होते थे वो उसका हम लाभ नहीं उठा पाते थे। और अगर हम कर देते थे तो उससे प्रॉब्लम ये होती थी, अगर जो है हम गैट का जो है ये वाला प्रोविजन मान लेते थे और हम जेनरिक ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते थे और लाइसेंस फीस देते थे, तो ड्रग्स जो आती थी, जो ओरिजिनल ड्रग्स आती थी, वो जो है बहुत कॉस्टली होती थी और अफोर्डेबल नहीं होती थी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे गैट के। और गैट के जो है बहुत सारे राउंड्स जो है या कॉन्फ्रेंस जो है हुए थे। 47 में जेनेवा में हुआ और वहाँ पे जो है अराउंड बहुत सारे चीज़ों पे जो है टैरिफ्स कट किए गए। फिर अलग अलग राउंड्स हुए, NSE में हुआ, टर्क्वे में हुआ, फिर जेनेवा में हुआ, फिर जेनेवा डिलियन राउंड हुआ, फिर कैनेडी राउंड, फिर जेनेवा टोक्यो राउंड, फिर जेनेवा यूरुग्वे राउंड। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे राउंड हुए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है कमिटमेंट्स हुई, अलग अलग आउटकम्स निकले। लेकिन ओवरऑल जो है गैट ने काफ़ी जो है मामलों में, अपने टैरिफ से रिलेटेड मामलों में जो है काफ़ी जो है अच्छा जो है परफॉर्मेंस शो किया। मगर बस प्रॉब्लम एक मेजर यही रही कि सर्विस से रिलेटेड जो है बहुत मेजर डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि धीरे धीरे सर्विस इंडस्ट्रीज जो है बढ़ रही थी और सर्विस को भी जो है एक इंटरनेशनल लॉज और पॉलिसीज और इक्वल प्लेइंग फील्ड की जरूरत हो रही थी। तो जो लास्ट राउंड जिसका जो है बहुत ज़्यादा जिक्र होता है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है राउंड है, दैट इज यूरुग्वे राउंड। तो यूरुग्वे राउंड वाज बेसिकली कंडक्टेड फ्रॉम 1987 टू 1994 और वो कल्मिनेट होता है इन फॉर्म ऑफ मराकश एग्रीमेंट। मराकश एक प्लेस है, एक जगह का नाम है, which established WTO or World Trade Organization. World Trade Organization incorporates the principles of GATT and provides a more enduring institutional framework for implementing and extending them. GATT was concluded in 1947 and is now referred to as GATT 1947.
GATT 1947 was terminated in 1996 and WTO integrated its provisions in GATT 1994. तो बेसिकली क्या था कि यूरुग्वे राउंड शुरू होता है 1986-87 में, और वो अलग अलग राउंड्स होते रहते हैं, और अल्टीमेटली गैट के जो है नेगेटिव्स थे उसको रिमूव करते करते, और फाइनली जो है क्योंकि सर्विस भी बहुत तेजी से जो है वर्ल्ड में सर्विस इंडस्ट्री बहुत राइज कर रही थी, तो उसके भी कंसिडरेशंस को कंसिडर करते हुए जो है 1994 में मराकश में जो है एक एग्रीमेंट साइन होता है, जो फाइनली जो है WTO के फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, और वो गैट के सारे जो है प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। और गैट बेसिकली जो है गुड्स से रिलेटेड जो है चीज़ों के बारे में एग्रीमेंट है। WTO सर्विस को लेकर भी जो है एग्रीमेंट करता है, सर्विस को लेकर भी अपनी एग्रीमेंट बनाता है, गुड्स को लेकर भी अपनी एग्रीमेंट बनाता है। तो इस तरीके से WTO के पास जो है सर्विस से गुड्स से रिलेटेड जो है प्रिंसिपल वो एग्रीमेंट्स हैं, जबकि गैट जो है प्रॉपरली वाज फोकस्ड ऑन गुड्स ओनली। तो WTO हमको जो है फॉर्मेशन दिखता है इन 1995, जो फाइनली जो है WTO कम्स टू एग्जिस्टेंस। तो गैट में बहुत सारी कमियां थी, वो अभी हम लोग ने देखी, और अभी हम लोग एक स्लाइड और देखेंगे जिसमें हम लोग और स्पेसिफिकली बताएंगे कि WTO में गैट में क्या प्रॉब्लम थी और WTO क्यों एग्जिस्टेंस में आता है। तो WTO created in 1995 is an international institution that oversees global trade rules among nations. It superseded 1947 General Agreement on Tariff and Trade. Why WTO replaced the GATT? GATT was only a set of rules and multilateral agreements and lacked institutional structure. एक एग्रीमेंट ही था, बट एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में इसका जो है कभी प्रॉपरली जो है नहीं बन पाया था ये। So GATT 1947 was terminated and WTO preserved its provision in form of GATT 1994 and continues to govern trade in goods. तो जैसे मैंने बताया कि GATT के जो प्रोविजंस थे वो सिर्फ गुड्स के लिए आज की डेट में यूज होते हैं। तो ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर नॉट कवर्ड इन रेगुलर GATT रूल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो तीन चीज बेसिकली हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग अगले स्लाइड में भी देखेंगे कि IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर, फिर सर्विसेज को लेकर और गुड्स को लेकर। तो ये तीन मेजर चीजें हैं जिसके बारे में गैट WTO में एग्रीमेंट्स हैं, और भी एग्रीमेंट्स हैं, मगर ये तीन मेजर चीजें हैं, गुड्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर और IPR को लेकर, जिसमें जो है WTO जो है एग्रीमेंट्स बनाता है और ओवरऑल इन तीन एरियाज में ट्रेड को गवर्न करता है। लेकिन जो गैट था वो बेसिकली सिर्फ गुड्स को देखता था। तो एक इसीलिए जो एक ओवरऑल बॉडी जो है, एक अम्ब्रेला बॉडी WTO है, जो कि गुड्स को भी देखती है, सर्विसेज को भी देखती है और IPR या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड इश्यूज को भी हैंडल करती है, जबकि गैट वाज ओनली सीन गुड्स ओनली, राइट। तो गैट प्रोवाइडेड फॉर कंसल्टेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अलाउइंग अ गैट पार्टी टू इन्वोक गैट डिस्प्यूट सेटलमेंट आर्टिकल्स इफ इट बिलीव that another party's measure caused its trade injury. GATT did not set out a dispute procedure with great specificity, resulting in lack of deadlines, laxity in establishment of dispute panel, and adoption of panel report by GATT parties. It made GATT a weak dispute settlement mechanism. तो GATT का जो है अपना गुड्स को रिलेटेड जो पॉलिसीज थी वो तो अपनी जगह पे थी, वो तो ठीक थी या नहीं ठीक थी, उस तो एक अलग चीज हो गई। मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ी गैट के साथ ये थी कि एक तो वो सिर्फ गुड्स के लिए था, दूसरी चीज अगर जो है किसी मामले में जो डिस्प्यूट होता भी था तो उसके पास प्रॉपर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं था, बहुत ही वीक था। मतलब सेटलमेंट मैकेनिज्म वाज स्ट्रॉन्ग, सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वाज नॉट इन प्लेस। तो एक मेजर जो ड्रॉबैक गैट का हमको देखने को मिलता है। फिर अब WTO के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो WTO का स्ट्रक्चर जो है 3 लेवल पे है, एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, एक जनरल काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। तो ये थोड़ा सा पुराना स्ट्रक्चर है, इसमें नए डेटा आप फीड कर सकते हैं। तो WTO स्ट्रक्चर इज बेसिकली, ये स्लाइड जो है थोड़ी सी पुरानी है और इसमें नया डेटा फीड किया जा सकता है, 2018-19 का जो लेटेस्ट डेटा भी फीड किया जा सकता है। तो WTO का स्ट्रक्चर जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जनरल काउंसिल और सेक्रेटेरिएट लेवल का है। तो अराउंड मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस
जो है जितने भी मेंबर्स जो है WTO में होते हैं उन सभी के मेंबर्स यहाँ पे होते हैं। इसका काम जो होता है डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करना होता है फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में डिस्कस करना होता है। एवरी 2 ईयर ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बैठक होती है, सब लोग बैठते हैं। और ये भी लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट सॉरी थोड़ा सा पुराना डेटा है। अब तक 12th कॉन्फ्रेंस या मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात चल रही है। ये 9th यहाँ पे लिखा हुआ है, 12th जो है अभी कजाकिस्तान में होने वाला है। तो मोस्ट लाइकली कि वो जो है पर्सन टू पर्सन नहीं होगा, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होगी। तो अभी जो लास्ट हुआ है वो 11th कॉन्फ्रेंस हुआ है तो ये 9th यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, 9th बाली कॉन्फ्रेंस जो है 2013 में हुआ था। तो बेसिकली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है जितने भी मेंबर नेशन हैं वहाँ के जो है मेंबर्स, वो जो वहाँ की गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करती है, चाहे वो मिनिस्टर्स हों वहाँ के, चाहे वो जो है वहाँ के सेक्रेटरीज हों, उनका जो है एक समूह है, एक ग्रुप है, वो जो है अपॉइंट करता है डायरेक्टर जनरल और WTO। वो ट्रेड एग्रीमेंट्स पे सारे डिस्कशन वो लोग करते हैं। एवरी 2 ईयर्स वो कॉन्फ्रेंस होती है। और अभी करंटली जो है हम लोग 12th कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, जो कि जो है कजाकिस्तान में जून में जो कजाकिस्तान में होने वाला था। ठीक है, अब जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है जनरल काउंसिल आता है। जनरल काउंसिल जो है वो सेकंड डे टू डे मामले में जो है वो मतलब बैठता है, और जनेवा में वो जो है मतलब उसका हेडक्वार्टर है। और जनरल काउंसिल जो है कि 2 मेजर बॉडीज हैं, एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है और एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है। तो ये लोग जो है बेसिकली जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस तो 2 साल में मिलेगी, मगर डेली बेसिस पे जो है ये लोग काम करते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करते हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट की बात होती है। फिर डायरेक्टर जनरल जो है ये भी पुराना डेटा है, तो इसको भी आप लोग जो है ये जस्ट आपके लिए एक होमवर्क भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि आज की डेट में कौन जो है डायरेक्टर जनरल है, वो आप लोग सर्च करिएगा। तो डायरेक्टर जनरल होते हैं, डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट होता है, जो कि हम लोग ने देखा था कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करती है। देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर जनरल को। एवरी 4 ईयर जो है उनका 4 ईयर का टेन्योर होता है, और 4 ईयर के बाद एक नए डायरेक्टर जनरल होते हैं। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। इनका ऑफिस या सेक्रेटेरिएट जो होता है वो जेनेवा में बेस्ड है, तो वहीं पे जो है WTO का हेडक्वार्टर भी है। अगर हम लोग बात करें कि जो है WTO का मेजर फंक्शंस क्या है, तो WTO के मेजर फंक्शंस जो हैं वो है ट्रेड बैरियर जो है या बैरियर्स टू ट्रेड है उसको रिड्यूस करना। ये जो सिंबल है नीचे की तरफ वो शो कर रहा है कि ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना। तो रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स जो होते हैं वो 2 फॉर्म में देखे जाते हैं, एक टैरिफ बैरियर और एक नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होता है, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है, उसको हम लोग भी समझेंगे। दूसरा है कि जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वो जो है वर्ल्ड ट्रेड से बेनिफिट जो है कर पाए, WTO के जितने भी एग्रीमेंट्स बने उससे उसमें जो है उनका भी से रहे, और जो है उससे वो बेनिफिट या लाभ कमा सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ डेवलपिंग और डेवलप नेशन ही जो है उससे बेनिफिट जो है उठा पाए। तो लीस्ट डेवलप कंट्रीज के बारे में भी यहाँ पे स्पेसिफिकली केयर किया गया है। तो बैरियर्स को रिड्यूस करना ट्रेड इंटरनेशनल बिजनेस में, फिर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाए उसको इंश्योर करना। इन दोनों पॉइंट्स को, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को इंश्योर करने के लिए एग्रीमेंट्स बनाना, ये जो है थर्ड मेजर फंक्शन है WTO का। तो 1 और 2 यानी फर्स्ट यानी ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, और लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो सेकंड पॉइंट है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो है WTO से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज बनाएगा WTO उससे बेनिफिट कमा सके, उठा सके, उसको इंश्योर करने के लिए एग्रीमेंट्स बनाना, ये जो है तीसरा फंक्शन है WTO का। और इन केस अगर जो एग्रीमेंट्स जो बनाए जाते हैं और जो मेंबर कंट्रीज एग्री करते हैं फाइनली उन एग्रीमेंट्स को फॉलो करने के लिए, तो अगर उन एग्रीमेंट्स को कोई वायलेट करता है यानी थर्ड पॉइंट को कोई वायलेट करता है, तो फिर जो है उसको डिस्प्यूट सेटलमेंट करना, यानी डिस्प्यूट होगा तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना, वो जो है फोर्थ फंक्शन होता है। यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म का भी यहाँ पे खास ध्यान रखा गया, जो कि जो है आपने देखा गैट में या GATT में उसका जो बहुत ही वीक जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म था। फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोऑपरेशन विद अदर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना और एनवायरनमेंट को जो है सस्टेनेबली जो है
ग्रो करवाना या जो है उसके बारे में सोचना या उसके बारे में जो है पॉलिसीज लाना ताकि एनवायरनमेंट हमारा डैमेज ना हो सके और सस्टेनेबल हम लोग जो है ग्रो कर सकें, इकोनॉमी हमारी ग्रो कर सके, उसको इंश्योर करने के लिए वो बहुत डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोऑपरेशन करना, वो भी एक फिफ्थ मेजर फंक्शन होता है WTO का। तो आइए समझ लेते हैं कि जो फर्स्ट मेजर फंक्शन है बैरियर्स को रिड्यूस करना, और हमने ये समझा था कि बैरियर्स को रिड्यूस करने का मतलब है कि दो तरीके के बैरियर्स होते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ। तो व्हाट इज टैरिफ बैरियर एंड व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर? तो टैरिफ बैरियर को अगर एग्जांपल से समझें तो जैसे यूएस है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ओबामा जो है उनसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो फोर्ड यूएस की कंपनी है, तो अगर फोर्ड को प्रमोट करना है उनको, तो वो क्या क्या करेंगे कि उस पर जीरो एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। और जब जीरो एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे और कंपैरेटिवली अगर जो है हमारी इंडियन प्रोडक्शन जो है, इंडियन कार जो है नैनो, अगर वो जो है एक्सपोर्ट हो रही है यूएस में, और यूएस पे जो है यूएस जो है उस पर 36% कस्टम ड्यूटी लगा दे, 12% सीवीडी लगा दे, सेल्स टैक्स, वैट और दुनिया भर के जो टैक्स लगा दे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1-2 लाख की कार होने के बावजूद भी इसके रेट जो है बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर इंडियन प्रोडक्शन जो है या इंडियन प्रोडक्ट कोई भी जो है कॉम्पीट करने की कोशिश करेगा यूएस के प्रोडक्ट से, और यूएस ने वहाँ पे उसको ऑलरेडी जो है 0% एक्साइज ड्यूटी लगा रखा है, तो यूएस का प्रोडक्ट ऑलरेडी जो है टेक्निकली थोड़ा सा साउंड है, और जब उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा तो रेट वाइज भी ऑल्सो काफी जो है कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, चीपर हो जाएगा। तो इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है कोई नहीं खरीदेगा यूएस में, इवन अगर जो है उसको यूएस में आने के लिए अलाउ भी कर दिया जाए। तो इस तरीके से उस पर जो है ये जो टैक्स लगाया जाता है कस्टम के फॉर्म में बहुत ज्यादा जो दिया गया है, वो एक तरीके का बैरियर है, एंड दैट बैरियर इज नोन एज टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर की बात की जाए तो नॉन टैरिफ बैरियर में हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हम कुछ नहीं लगाएंगे, जो टैक्स हम यूएस की कंपनी के लिए वही इंडियन कंपनीज के लिए, दैट इज गुड, वेरी फाइन। लेकिन अदर तरीके से हम जो है उस पर जो है रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। वो अदर तरीके से किस तरह से रेस्ट्रिक्शन है, वो अदर तरीके से रेस्ट्रिक्शन जो है दूसरे तरीके से रेस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं, वो हम लगा सकते हैं कि भाई ऑब्वियसली आप जब वहाँ पे जा रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस परमिशन में आप कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम या अड़ंगा लगाते रहेंगे वहाँ की गवर्नमेंट, या कस्टम क्लियरेंस नहीं मिलेगा उसको, या आप उसको बोल देंगे कि भाई आप 1 लाख कार नहीं लेके आएंगे, आप जो है सिर्फ 1000 कार ही ला सकते हैं। तो कोटा रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम जो है आपको एक्सपोर्ट भी करने दे रहे हैं, प्राइसेस भी हमने कुछ नहीं आपको जो है रेस्ट्रिक्ट किए, आपके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं लगा रहे हैं, मगर आपको हम जो है 1 लाख कार नहीं लाने देंगे, आपको सिर्फ हम 1000 कार ही लाने देंगे। तो इस तरह से कोटा जो है हर जो है कंट्री का या प्रोडक्ट वाइज लगा देना। तो ये जो है एक तरीके से नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जाम्पल होता है। तो सब्सिडीज देना, सब्सिडीज जो है अगर अपनी कंट्री को जो है आप अपने कंपनीज को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दे रहे हैं, वो भी एक नॉन टैरिफ बैरियर है। अगर जो है मान लीजिए कि यूएस जो कि ऑलरेडी इतना रिच कंट्री है, वो अपनी जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को जो है बहुत ज़्यादा सब्सिडी देने लगेगा, चीपर एकदम जो है उनको जो है खाद मिलने लगेगी, एग्रीकल्चर के केस में उनको स्टील या जो है ऑयल ये सब बहुत चीप रेट पे मिलने लगेगा। तो यानी कि जो है वहाँ की जो वहाँ की कंपनीज होंगी वो जो है अपने प्रोडक्ट को हाईली जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके आ जाएंगी, और दूसरी कंट्री कभी भी जो है यूएस में अपने प्रोडक्ट्स को जो है इवन अगर सप्लाई भी करता है तो कम्पीट नहीं कर पाएगा। चीप इलेक्ट्रिसिटी देना, चीप लोन्स देना, इंटरेस्ट सबवेंशन, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अल्टीमेटली रिजल्ट करेगा इससे, और जो है बाहर की कोई भी कंपनी आएगी वो जो है यूएस के प्रोडक्ट से उनकी जगह पे कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। तो ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो नॉन टैरिफ बैरियर में क्या हुआ कि हमने टैक्स जो है दोनों पे सेम रखा, मगर हमने अपनी कंट्री में जो है सारे जो प्रोडक्शन की चीजें जो है अपनी कंपनीज को बहुत ही सस्ते में देना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके से, चाहे इलेक्ट्रिसिटी चीप दी, यानी कि हमने सारा जो है जितना भी प्रोविजन इंश्योर कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो है कंपनीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाए, वो सब नॉन टैरिफ बैरियर में आ जाता है। तो नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जाम्पल यही होता है। एक तो जो है हमने आपको यही बताया कि रेड टेपिज्म या एप्लीकेशन जो हमने दी है वो जो है उसमें डिले करते जाएं, फिर हमें कोटा लगा दें कि हम जो है आपको 1 लाख कार नहीं लाने देंगे, सिर्फ 1000 कार लाने देंगे, वो एक तरीके का कोटा लगा देना फॉरेन कंपनीज पे या फॉरेन कंट्रीज से जो कंपनीज आ रही हैं एक्सपोर्ट करने उन पे, या अपने जो है देश में अपनी कंट्री में जो है अपने यूएस जो है अगर जो है अपने कंपनीज को सब्सिडीज देता है, चीप इलेक्ट्रिसिटी देता है, चीप लोन्स देता है,
इंटरेस्ट सबवेंशन देता है। तो ये सारी चीजें जो है नॉन टैरिफ बैरियर हो रही हैं, ये बहुत ज्यादा जो है वहाँ की लोकल कंपनीज को बेनिफिट करती हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को अच्छी क्वालिटी का चीपर रेट पे बना पाते हैं और बाहर से आई हुई कंपनीज जो है अपना प्रोडक्ट जो है वहाँ पे बहुत ही हाई कॉस्ट पे ही बेच पाती हैं और कंपेरेटिवली, और वो फिर उनका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है और उनको बहुत लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इश्यूज देखेंगे कि इंडियन मेजर इश्यूज ऑफ इंडिया जो है क्या हैं WTO के साथ, और अलग अलग चीज़ें समझेंगे कि नॉन टैरिफ बैरियर के अलावा जो है क्वालिटी कंट्रोल में क्या इश्यूज आते हैं और इंडिया क्या क्या मेजर इश्यूज फेस करता है। सो we'll meet in the next class. Thank you very much for listening to this lecture.